भाई गुड आफ्टरनून है जी, गुड आफ्टरनून। थर्मोडायनेमिक्स का जेई नीट लेक्चर नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। हमने लास्ट टाइम आई थिंक सारी प्रोसेसेस करी थी। फर्स्ट लॉ देखा था, जीरोथ लॉ देखा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज वो डिवाइसेस देख लेते हैं, हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और कार्नो इंजन, एंड उसके साथ ये चैप्टर को खत्म किया जाए। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लुक एट इज अ हीट इंजन। Now, what is a heat engine? It's a device that takes in heat energy and does useful work for you. So a device that takes in heat energy, accepts heat energy, and does useful work is called a heat engine. और बाकी जो बची कुची हीट है वो निकाल देता है हीट सिंक में। तो कुछ इस तरह का उसका फ्लो चार्ट जैसा होता है। ये तुम्हारा सोर्स है, हीट सोर्स, विच इज एट ए टेम्परेचर T1 लेटर से, और यहां से हीट एनर्जी ली जाती है विच इज Q1, एंड ये तुम्हारा वर्किंग सब्सटेंस है। एंड इस ये कोई गैस हो सकता है या कोई पेट्रोल है, कुछ भी हो सकता है, एंड देन इट गिव्स यू वर्क, एंड बाकी का जो है वो निकाल देता है इन योर सिंक। सो ये है आपका सिंक, हीट सिंक भी कहते हैं, टेम्परेचर T2 होता है उसका। सो दिस इज Q2. Now looking at this flow chart, I think it should be a rectangularish contraption. So looking at this flow chart, it is but evident that Q1 जो है वो दो चीजों में बट रहा है, एक तो Q2 और W. So from the diagram you can see Q1 is Q2 plus W, and as a result you get an equation for work done, which is W is Q1, which is heat accepted from the source, minus Q2, which is heat lost in the sink. So W is Q1 minus Q2. आगे जाके ये efficiency देगा हमको. Now what is the idea of efficiency? Efficiency of an engine. Efficiency is actually the work done per cycle upon the amount of heat energy taken per cycle. So eta, let me define it as eta is work W by Q1. Yeah, work done per cycle upon heat taken from the source per cycle. And as my man rightly said, eta is work over Q1. तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है एफिशिएंसी का। हम दूसरा एक्सप्रेशन लाने की कोशिश में है। सो हियर W is actually Q1 minus Q2. So I'm going to put it here as Q1 minus Q2 over Q1. That becomes, मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, ओपन अप करता हूँ इस चीज को. So what are we left with? Eta is 1 minus Q2 by Q1. 1 minus Q2 by Q1. And if you want it in terms of percentage, you multiply that by 100. Also, 200. there is one shortcut you can also make here. Now the source which is giving heat energy Q1 is at temperature T1, and sink which is taking heat energy Q2 is at temperature T2. So Q2 by Q1 can also be written as T2 by T1. So, well, this is precisely the same expression that you used in Carnot engine. तो उसमें भी 1 minus Q2 by Q1 था, और उसमें पीछे हमने 1 minus T2 by T1 लगा डाला बढ़िया से डेरिवेशन के साथ. So you can use any expression, this one, this one, this one, any expression. So, but don't forget T1 is the temperature of the source and T2 is the temperature of the sink. Now you would say, sir, efficiency 100% कब होगी? 100% efficiency कब मिलेगी हमको? जब तुम ये सोचो कि जितनी ये ईटा 1 होना चाहिए, 100% मतलब 1, तो जितना Q1 हो उतना ही W मिले. मतलब सपोज तुम 100 जूल लेते हो यहां से, तो 100 की 100 जूल वर्क हो, एंड हीट लॉस्ट इन द सिंक इज 0 जूल. बट कितना बढ़िया रहे, कितना बढ़िया सिनारियो होगा. But as you can understand, this is not possible. By the second law of thermodynamics, it says that, it's Kelvin Planck's statement regarding a heat engine, that you cannot have a heat engine that takes all the heat energy from the source
and converts all of it into work done without wasting anything in the sink. Such a heat engine is not possible. Alright, so that is the second law of thermodynamics given by Kelvin and Planck कि ऐसा कोई engine नहीं हो सकता जिसकी efficiency 1 हो. Okay, so that is the idea of a heat engine. दूसरी आइटम है हीट पंप या रेफ्रिजरेटर. इसका एक्चुअली उल्टा है, बस एरोस पलट जाएंगे और कुछ नहीं होगा. सो हीट पंप या रेफ्रिजरेटर. यू वांट टू टेक डाउन द इक्वेशंस, यू कैन टेक देम डाउन प्लीज. आई एम श्योर यू आर डूइंग दैट राइट नाउ. W is Q1 minus Q2 भी लिख लीजिएगा. नाइस एक्सप्रेशन. So the second item is the heat pump, or you call it a refrigerator. और बिल्कुल वही काम करता है. It is the reverse of a heat engine. It is the reverse of a heat engine. तो क्या रिवर्सिबिलिटी में क्या है? ये कम टेम्परेचर पे हीट एनर्जी खींचता है, फिर उस वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क होता है और इन दोनों का एडिशन लार्ज हीट बनके बाहर निकाल दिया जाता है. सो इट टेक्स heat energy from the source. From a, you know, what do you call it, cold reservoir, you can call it. Work is done on the substance and large amount of heat energy is given to the hot reservoir. Of heat energy is given to the hot reservoir at a higher temperature, of course. ये lower temperature पे हो रहा है. So let me show the algorithm to you, the flow chart to you, किस तरह वर्कआउट होता है ये. तो जैसे तुम, ये बिल्कुल रेफ्रिजरेटर ही है. तुम कोई चीज को ठंडी करना चाहते हो, तो कोई भी चीज, सपोज तुमने अंदर कोई खाना रखा फ्रिज में और तुम उसे ठंडा करना चाह रहे हो, तो ठंडा कैसे होगा? उसमें से हीट एनर्जी तुम खींच लेते हो. So that is your cold reservoir. So this is your cold reservoir at temperature T2, and यहाँ से तुमने heat energy खींची W2 or Q2, and this is given to the working substance. You know, it is the gas inside the fridge, and work is done on that substance, and large amount of heat energy is given to the hot reservoir, which is the outside space actually, you know, the atmosphere. तभी तो इसमें से गर्मी निकलती है. I'm sure you can know, you know, रेफ्रिजरेटर के बाजू में खड़े रहोगे तो तुमको गर्म महसूस होगा क्योंकि गर्मी निकाल रहा है. एंड आयरॉनिकली इसका भी इक्वेशन हीट इंजन के जैसा ही कि Q1 is equal to Q2 plus W. Here also Q1 is equal to Q2 plus W. And as a result you get W as Q1 minus. अब इसमें एफिशिएंसी नहीं होती, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है. यस सर. And it is called alpha. Alpha is actually the heat taken from cold reservoir upon the work done. Work done per unit cycle. Okay, so simple as it gets, alpha is Q2 by W. Q2 by W. And you can substitute W as Q1 minus Q2 also here. I'm going to take this off and I'm going to put in some equations. So what do we have here? So also W is equal to Q1 minus Q2. So also you might actually write these equations, Q2 over Q1 minus Q2. And not only that, you know Q2 is at temperature T2, Q1 is at temperature T1, so you can also substitute alpha is T2 over T1 minus T2. Let me make one thing absolutely crystal here, that T1 and T2 are to be taken in Kelvin. T1 and T2 will be absolute temperatures. Absolute temperature. Always absolute temperature to be taken in terms of degree Kelvin. Alright, never forget that. So alpha is T2 over T1 minus T2.
These are the equations for coefficient of performance of a heat pump और रेफ्रिजरेटर. जल्दी से लिख लीजिए, फिर कार्नो इंजन पे चलते हैं. The last item. Sir, Yep. sir, can we take the heat from this refrigerator and provide it to the engines? We can do that also. We can create a Carnot cycle. You know, एक चीज को इंजन बनाओ, दूसरे को पंप बनाओ, एंड ये कार्नो साइकिल से तुम कर सकते हो. एंड इसी तरह तुम ये फाइंड आउट करते हो कि द इंजन हैविंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कार्नो इंजन. नो इंजन हैज अ ग्रेटर एफिशिएंसी देन द कार्नो इंजन. और बट जैसे तूने याद दिलाया, मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको. नाउ समबडी थिंक्स, इज इट पॉसिबल कि हम यहां से 100 जूल लें और वो सारा का सारा बगैर कोई वर्क किए 100 जूल हॉट रिजर्वॉयर में दे दे? नो, दैट इज नॉट Second law नाम पॉसिबल. बोल रहा है sir. Sorry? Yeah. That is the Clausius statement, which says that there cannot be any refrigerator where we can take heat energy from the cold reservoir and transfer it directly to the hot reservoir without doing any work. In short, work तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जा करके इन दोनों का टोटल तुमको यहाँ मिलेगा. So that is the second second law of thermodynamics for Clausius for a heat pump or refrigerator. Okay, so let's take it up and let's go on to the last device, which is a Carnot engine. I'm sure you remember Carnot engine is a 4-stage and reversible engine. 2 stages isothermal, 2 stages adiabatic. 2 stages adiabatic. Absolutely. And बहुत ही बढ़िया efficiency वगैरह. Actually it's an idealistic situation. Idealistic situation होती है Carnot engine की. So 2 stages. It's a reversible heat engine. 4-stage process. 2 stages isothermal. Very good. And 2 stages adiabatic. We are aware of isothermal process, adiabatic process as such. Initial state is P1, V1, T1. और ये P1, V1, T1 के स्टेज में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. I had made a series of diagrams, a series of 5 beautiful diagrams. 5 diagrams. Yes. Oh yes. Or was it 6 diagrams? I don't remember. 5 sir. No problemo. I don't know whether these diagrams are going to hold or not. So पहला सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें ये सिस्टम यहाँ पे है P1, V1, T1 और यहाँ पे स्टैंड है, और अब मैं हीट सोर्स लगाता हूं. ओनली द बॉटम इज कंडक्टिंग है. एंड पहला प्रोसेस होगा, इट इज एन आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, जिसमें the system will expand, it will do work, and it will go from P1, V1, T1 to P2, V2, T1. Because it is an isothermal process, temperature remains same. फिर सोर्स निकाल के स्टैंड लगा देता हूं मैं, and again there is a small expansion. System goes from adiabatically, it goes from P2, V2, T1 to P3, V3, T2. एंड अब मैं स्टैंड निकाल के सिंक लगा देता हूं, एंड नाउ देयर विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन wherein the system will come down to वाह वाह क्या बात. P4D. Yes sir. You are well aware. And finally स्टैंड लगा दिया मैंने, and system comes back to the original state. I don't know whether does it look like the original state. P1, V1, T1. Yes. बराबर है. Let me draw a PV graph. It was a very lovely graph. I hope you remember that graph. चारों अरे 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 क्या बात है, आज गंदी लाइनों का दिन है. Yes sir. It is a bad line day. So this is P1, V1 and T1. and यहाँ से इधर आता है P2, V2, T1. This is like isothermal expansion. और यहाँ से
This is adiabatic expansion goes to P3 V3 T2. यहाँ से it's not a very good diagram as such, but somehow we'll have to manage. Okay, looking good. And अब यहाँ से it will go to, there will be an isothermal compression. Isothermal compression. P4 V4 T2. P4 V4 T2. And यहाँ से it will go back by adiabatic compression to P1 V1 T1. So two stages isothermal, या isothermal expansion, isothermal compression. दो stage adiabatic expansion, adiabatic compression. इसमें भी efficiency बहुत important होगी. Efficiency of the Carnot engine. We don't need to derive it. There is no need absolutely. Eta is 1 minus Q2 by Q1, which we tend to use 1 minus T2 1 minus by T2 T1, where T1 is the temperature of the source and T2 is the temperature of the sink. Is this agreeable, people? Yes, sir. Take it down, take it down. हाँ, न्यूमेरिकल तो करने हैं ना, है ना, करेंगे ना. SP8 करने पड़ेंगे. हाँ, करने पड़ेंगे, सही है. SP8 पे जा रहा हूँ. I hope you can take it up. It says calculate the least amount of work W that has to be done to freeze 1 gram of water. 1 ग्राम पानी है, उसको फ्रीज करने का है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, by means of a refrigerator. Okay. So T2 ये cold reservoir का टेम्परेचर है T2, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, that is 273 Kelvin. सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है. T1 हॉट रिजर्वायर 27 plus 273. Oh yes. And how much heat is passed to the surroundings? Q1 भी find करना है. And latent heat of fusion LF is 80 calorie per gram. बराबर. तो कोल्ड रेजर्वायर में पानी है. इन कोल्ड रेजर्वायर there is water at 0 degree Celsius. अच्छा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को फ्यूज करके बर्फ बनाने के लिए मुझे उसमें से कितनी एनर्जी निकाल लेनी पड़ेगी? Q is equal to ml. The heat energy required to be removed to convert water to ice is Q2 is mLF. कितना मास है पानी का? 1 ग्राम. And what is LF? 80 calorie per gram. So how much is Q2? 80 calories. 80 cal. याद रखना, कैल में है, जूल में नहीं है. Okay, now coefficient of performance. Alpha is equal to Q2 by W. Q2 by W. अच्छा, तुमको याद है W की जगह फिर हमने Q1 minus Q2 लिखा था, और फिर Q2 over Q1 minus Q2 की जगह T2 by T1 minus T2 लिखा था. हाँ सर. अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं, हमारे पास Q2 है, हमारे पास T2 है, हमारे पास T1 है. क्या यहाँ से W मिल पाएगा? Yes sir. 80 by W. T2 273 over 300 minus 273. तो दुनिया का नारा चले चलो, मंजिल का इशारा चले चलो भाई. 273 by 27 करीबन 1 point something, 1.01 है ना, कि 1.1. हाँ सर. 01 होगा. हाँ 03 वाला है ना, तो 27 के साथ. हाँ, तो 80 by W. तो W is 80 by 1.01, 80 by 1. मतलब करीबन 7. ए भाई, this will be 10.01 not 1.01.
कम वक्त मारो। सर वो उल्टा हो गया। हाँ तुम भी है ना लगे हुए हो बस। सो करीबन 80/10.1 इज करीबन 7.9 जैसा, 7.9 करीबन करीबन। एंड ऑल्सो तो वर्क डन करने को फाइंड किया हमने, फाइंड कर लिया 7.9 कैल। एंड Q1 is W plus Q2. W plus Q2 7.9 plus Q2 is how much? 80. तो 87.9 करीबन 7.9 कैल। लुक फॉर कैल, 7.9 yeah लुक फॉर कैल, yes, sir. नॉट जूल, सब कुछ कैल में ही है। सो W 7.9 कैल एंड Q1 is 87.9 कैल। ऑलराइट, वी आर लुकिंग एट SP11। ओके, SP11 करने जा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया सम, एक भी सम फालतू होता नहीं, सब बढ़िया ही होता है। सर SP11 आपको सारे बढ़िया ही लगते हैं। भाई देखने वाले की नजर है ना। yes sir. ट्रक के पीछे भी लिखा होता है देखो मगर प्यार से, तो प्यार से देखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा लग ही जाएगा, कुछ तो पता चलेगा। SP11 कार्नो इंजन वाला है। On place भी दिया हुआ। A Carnot engine takes 1000 kilocalorie of heat from a reservoir। मतलब ये Q1 है, 1000 kilocalorie of heat from a reservoir at 827। ये तुम्हारा T1 है, 827 डिग्री सेल्सियस। भाई मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ पहले कन्वर्ट कर देने का, कोई दंगा करने का नहीं। बराबर कितना हो जाएगा? 1100 1100 and exhaust it to a sink at 27। ले सिंक जोन है 27 डिग्री सेल्सियस है। plus 200 मतलब 300 How much heat is released? Q2 दिया गल्ला। And what is the efficiency of the engine ETA? Okay, now we know for any engine, चाहे वो हीट इंजन हो, कार्नो इंजन हो, Q1 by Q2 is T1 by T2। Remember, eta was 1 minus Q2 by Q1. You used to write it as 1 minus T2 by T1. So Q1 by Q2 is T1 by T2। Q1 कितना है? 1000 किलोकैल upon 1000 Q2। calories T1 1100 by 300। 1100 My goodness। 300 So it's 11 by 3। Q2 तिकड़े। So 1000 into 3 by 11। So that's 1000 to 3 is 3000। 3000 divided by 11 3000 divided by 11। 11 2s are 22, यहाँ पे 8 आ गया। 11 7s are 77, यहाँ पे 3 आ गया। And 11 2s are 22, so 272.7 करीबन या 273 पकड़ लो। हाँ तुमको जो पकड़ना है पकड़ लो, किलो कैल। अगर आपको किलो कैल में आंसर नहीं चाहिए तो 272.7 into 10 raised to 3 कैल, और यहाँ से 2 जीरो जंप करा दिया मैंने, तो मुझे 2.7 मिलेगा। into 10 to 5 calories That is absolutely true। So 2.72 into 10 raised to 5 कैल। अच्छा हमको एफिशिएंसी भी तो मांगता ही है। So efficiency 1 minus T2 by T1 का minus T2 upon T1 बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। Q1 T2 300, T1 1100। तो what are we left with? 1 minus 3 by 11। So 11 minus 3 is how much? 8। 8 क्या परसेंटेज में चाहिए? परसेंटेज में ओके, yes sir परसेंटेज में चाहिए तो 100 कर देते हैं जी। 800 by 11, 11 7s are 77 और 3 बच गया जी। 11 2s are, ये तो इसके जैसे ही है 72.72। 72.72% चेक कीजिए हुजूर, सही है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। सर क्वेश्चन में एक ग्लिच था सर। क्या ग्लिच है? सर वर्क डन करना पूछा है और हमने ढूंढा कि हाँ अच्छा, हाँ ग्लिच ये है, उन्होंने पूछा है हाउ मच वर्क इज डन, वो काट करके आपको लिखना है हाउ मच हीट इज रिलीज्ड। प्लीज मेक दैट चेंज। आपको क्वेश्चन में नजर आएगा कि उन्होंने तुमसे पूछा, एक्चुअली क्वेश्चन में है कि हाउ मच
वर्क इज डन, पर वो नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाउ मच हीट इज रिलीज्ड इन द सिंक. It is. So Q2 फाइंड करना है. दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया. मैं करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 3. कैन आई टेक इट ऑल ऑफ? एग्जांपल Yes, sir. 3. ओके, देखें एग्जांपल 3 क्या कहता है. Sir, ये सब ऐसा है, देखें. An ideal gas is taken through a cyclic process through 4 steps. The amount of heat involved are Q1 5960 joule, Q2 minus 5585 joule, 5585 Q3 minus 2980 and Q4 3645 3645 joule. Blah 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 respectively. Efficiency of the engine is. I seriously hope you remember, efficiency is the net work done over the net heat taken from the source. heat taken. Okay, so हमको क्या करना है, हमको क्या मांगता है. Now first thing, the net work done. By net work done, isn't it heat taken, Q taken from the source minus Q given out? Taken minus Q given out. Yes, sir. अब ये पॉजिटिव जो Q है वो टेकन है और Q2 जो है वो गिवन आउट है. तो एक काम करते हैं, सबका टोटल मार देते हैं. टेकन वाला कितना है 5960 प्लस 3645 माइनस, अब गिवन आउट वाला कितना है 5585 प्लस 2980. 980. चलो फिर 0 प्लस 5 इज 5, 4 प्लस 6 इज 10, यहाँ 9, 9 और 1 10 और 6 16, 5 और 1 6 और 3 9, माइनस 5 प्लस 0 है 5, 8 and 8 is 16, 9 1 is 10, 5 15, 5 1 6 7 8. So 9605 minus 8565. Now मैं वहीं लिखूं, फाइनल आंसर है 1040. 1040. कैल में जूल में, जूल. And Joule. the total heat taken, the net heat, the heat taken from the source, जो पॉजिटिव हीट है ना उनका लेना है, फ्रॉम द सोर्स इज Q taken. पॉजिटिव वाले कौन से, Q1 और Q4. सो Q1 प्लस Q4 that will be 5960 plus 3645. आई थिंक हमने यहाँ पे टोटल मार दिया था 9605. 9605. तभी मैंने इस तरह टोटल मारा था ताकि क्या है कि यूज करना हो ना तब दिक्कत ना हो. एंड नाउ माय लास्ट स्टेप, एफिशिएंसी. Efficiency. W by Q. W by Q टेकन. क्या परसेंटेज में चाहिए, देखो तो जरा. हाँ सर, परसेंट में दिया है. ओके, तो परसेंटेज में अगर चाहिए तो हमको, सर ऐसे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? अरे रुक ना, कर रहा हूं तेरे लिए, देख तेरे लिए जान आ जाए. मैं इधर से 3 0 खा जाता हूं, इधर से 3 0 खा जाता हूं, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 100. तो 104 डिवाइड बाय 9.6. सपोज यहाँ 10 होता तो ऊपर तुम्हारा आंसर क्या आता, 10.4 10.4 के आसपास. बराबर. पर आपका नीचे 9.6 है, मतलब 10 से कम. तो डोंट यू अग्री आपका आंसर 10.4 से ज्यादा होगा. सो ट्राई लुकिंग फॉर समथिंग दैट हैज गॉट 11 12 13 के आसपास का आंसर. आर यू लुकिंग एट दैट? 11 के आसपास, करीबन 11 के आसपास होना चाहिए. सॉरी, 10.82 किया है. दिया है ना ये कैलकुलेशन हमने किया कैसे? बेटा? मैंने यहाँ पे 9.6 है और ऊपर 10.4 है. मैंने ये सोचा कि अगर 9.6 से थोड़ा ज्यादा यहाँ 10 होता तो आंसर कितना आ जाता, 10.4. 10.4. पर यहाँ 10 से कम है, 9.6 है, तो ये वाला नंबर बढ़ेगा. तो करीबन 10.4 के आसपास बढ़ा हुआ नंबर करीबन 11% हो सकता है.
और फिर मैं ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि 11% के आसपास कोई आंसर दिखाई दे रहा है क्या, एंड मैं देखता हूँ और कितने आंसर है 10.82 के आसपास। सर एक तो 15 दिया हुआ है। 15 बहुत ज्यादा है, ज्यादा हो गया। तो 11 के आसपास एक ही आंसर है 10.82, एंड दैट इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स आउट। एंड एज आई से, इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, यू कैन ऑलवेज डिवाइड 1040 बाय 96। यहाँ पे 96 1040 करके आप एक रफ आइडिया ला सकते हो आंसर का, हो ही सकता है ना। हाँ सर। ओके, टेक इट अप प्लीज। राउंड 1 का 58 शुरू होने जा रहा है। क्या कहता है? इट सेज अ कार्नो इंजन whose sink is at 300 Kelvin. So T2 is 300 Kelvin, has an efficiency of 40%. So eta is 40%, or you can write it 40 by 100. That's 0.4. By how much should the temperature of the source be increased so as to increase its efficiency by 50% of the original efficiency? समझ में आया कुछ? English is a very funny language. So सर दो एफिशिएंसी दिया तो कंफ्यूज होता है। हाँ, वेरी गुड। कंफ्यूज होना दुनिया का सबसे आसान काम है, और उसमें से बाहर निकलना बस थोड़ा सा मुश्किल बट पॉसिबल है। तो सबसे पहले डेटा मुझे ये दिया हुआ है कि T2 300 है, ईटा 40% है, दैट्स 0.4। मैं पहले T1 फाइंड कर लूं, भले मुझे कहा नहीं है पर मैं T1 पहले फाइंड कर लेता हूं। सो वी नो फॉर अ कार्नो इंजन, eta is equal to 1 minus T2 by T1. okay, so this is 0.4 is 1 minus 300 by T1. 300 by So T1. 300 by T1, ये यहाँ आ गया, is 1 minus 0.4 which is 0.6. So T1 is 300 by 0.6 which is 3000 by 6, 500. 500 Kelvin is your answer for T1. अच्छा, अब सेकंड डेटा शुरू होता है। मुझे T1 by how much should the temperature of source be increased? So let the temperature of the source be increased by x Kelvin. ओरिजिनल टेम्परेचर 500 है, मैं और x बढ़ाता हूं, जिससे क्या कर रहा है? अच्छा, T2 वही है अब तक 300, और नई एफिशिएंसी so as to increase its efficiency by 50% of original efficiency. Now this is a very important idea. कुछ लोग सीधा ईटा डैश को 50% मतलब 0.5 लिख देंगे, बट नहीं, थोड़ा सा वापस पढ़ो। It says to increase its efficiency by 50%, मतलब ईटा डैश is original plus 50% of original. बात समझ में आई आपको? Yes sir. कितना एफिशिएंसी 50% नहीं करना है, वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी। सो द न्यू एफिशिएंसी ईटा डैश इज ओरिजिनल एफिशिएंसी ईटा प्लस जो भी इंक्रीज हुआ विच इज 50% ऑफ ओरिजिनल। तुम्हारा ईटा कितना है? 0.4, एंड 50 by 100 is 1/2 of 0.4. How much is 1/2 of 0.4? 0.2. So how much is your new eta dash? 0.6. अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना, so as to increase the efficiency to 50%, तो फिर सीधा eta dash is 50%, 0.5 लिख लिए होते, चल जाता। बट यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का खेल है पूरा। So eta dash is 1 minus T2 by T1 dash, 1 minus T2 over T1 plus x, and I am doing what I am doing good, 0.6 substitution, T2 300, T1 500 plus x। तो ये पूरा इस तरफ, जगह की तंगी के कारण 1 minus 0.6, okay, so 300 is 500 into 0.4, 200 plus 200 plus 0.4x. now 300 minus 200 is 100, 100 sir. 100. 100 by 0.4 is 250, 250. Yes sir. so x is 100 by 0.4
which is 250 Kelvin. Might as well check whether it is there. The answer Yes, is sir. there. Option D, 250 Kelvin. Yes, absolutely. Yeah. Tell me. सर वंस मोर वो ईटा वाला और एक्स आपने क्यों लिया वो समझाओ ना सर. पहला डेटा खत्म होता है 40% पे, फिर पूछा है बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड. सो लेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज बाय एक्स. तो तुम्हारा ओरिजिनल टेम्परेचर है 500, अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 500 प्लस एक्स. 500 प्लस और ये बढ़ा के तुमको फायदा क्या है, एफिशिएंसी भी तो बढ़नी है, बट सो एज टू इंक्रीज दिस एफिशिएंसी ईटा डैश is 50% of original efficiency by 50%. So original तो है ही, साथ में 50% of original efficiency. So efficiency plus the increase, that's 50% of the original, and that is how the cookie crumbles. All right. So this is how it is. Okay. Round 165 coming up. Now you understand. यस सर. I'm going to round 165, please. Come over, come over. Okay. सर वेट. Round 165. Sorry, what happened? इजी सा. Oh, easy peasy, Japanese. A refrigerator absorbs 2000 cal of heat from an ice tray. Okay, so ये Q2 है. पानी में से कितना कितना कैल है? 2000 कैल. 2000 कैल है. If the coefficient of performance alpha is 4, then work done by the motor. Oh, right. We know coefficient of performance. Alpha. मिल जाएगा. Sorry. इससे Q1 मिल जाएगा. पर क्यों चाहिए Q1? तुझे तो वर्क डन पूछा है ना W. 2000 by 4. भाई you might be tempted. बस 500 देख के आप फटाक से आंसर मार्क कर दोगे, हो सकता है वो जूल में हो. तो ये 500 कैल है. आप देखो 500 कैल आंसर में है कहीं पे? नहीं है. कैलोरी नहीं है तो 4 पॉइंट. तो हमको जूल में चाहिए. 500 into 4.2. I think that's 5 into 4.2 is 21. 2100 joule. 21. 2100. यस सर. Check that please. ऑप्शन है. So ये कैल और जूल का चक्कर याद रखिएगा. मैं राउंड 1 का 68 करने जा रहा हूँ. अच्छा मैं पहले, हाँ चलो राउंड 1 का 68 ही कर लेते हैं, लाइन मार के. सर वही लिखा है आपने. सही है. सर अच्छा ये राउंड 1 का 68. अरे सॉरी, ये राउंड 1 का 65 था. माय मिस्टेक, आई एम सॉरी. ये राउंड 1 का 65 है. मैं राउंड 1 का 68 करने जा रहा हूँ. गलती से मिस्टेक हो गया. A Carnot engine has an efficiency 1/6. तो ईटा is 1/6. is equal to 1/6. When temperature of the sink is reduced by 62%. Oh, let original yes, temperature of sink be T2 and temperature of the source be T1. और डेटा ये है कि efficiency is 1/6. पहला डेटा, let temperature of sink be T2, temperature of source be T1. So eta is 1 minus T2 by T1 and therefore eta की जगह कितना 1/6 is 1 minus T2 by T1. So how much is T2 by T1? 1 minus 1/6, which is 5/6. Okay. Now, in the second data, they tell us when the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius. So the new temperature of the sink T2 dash, isn't it T2 minus 62? T2 minus 62. Yes. बराबर. बट एक बात याद रखें कि ये 62 डिग्री सेल्सियस से घटाया, ये तुम्हारा नया T2 डैश है एंड T1 डैश तो वही है, T1 सेम ही है. न्यू एफिशिएंसी ईटा डैश
इतना कितना कहा है उन्होंने? This is ट्वाइस theta. ईटा, Twice eta. 1 by which 3. is 2, 1 by 6 is 1 by 3. तो अब now what do you want? Eta dash This put कर देंगे. 1 minus T2 dash by T1. So this is 1 by 3. 1 minus T2 dash की जगह T2 minus 62 over. 62 by Do you think there is anything left for you to do? 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. Now I would gladly compare 1 and 2. Divide 1 and 2. So 1 and 2. T2 by T1 over T2 minus 62 by T1. and this is 5 by 6 divided by 2 by 3. So this is 3 by 2. So 3 2s are 6. So 5 by 4. 5 by 4. ये T1 कट जाएगा 4. 4 Well, T2 is I equal to hope somebody can do the honors. 4T2 is 5T2 minus 6 5s are 30, 310. So ये 310 इधर. So T2 is 310 Kelvin. And अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो -273 करें. ये 300 केल्विन कितना होता है? 27. ये होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस. 37. Okay sir. एंड ये 37 मिल जाने पर आप इसको यहां लगाएं या 310 मिल जाने पर यहां लगाएं एंड यू विल फाइंड T1. यू वांट मी टू डू दैट? आई डू दैट. लेट मी डू इट. सो 310 by T1 is 5 by 6. 5 by 6. So T1 is 6 into 6 310 into 310 by 5. by 5. So 5 6 are 30. 62. 62 सही होगा. 6 2s are 12. 6 are 36, 37. Yes, sir. 372 Kelvin. And 372 Kelvin minus 273. 99 degree Celsius. 99. Yes sir. 99 degrees. Check the answer please. सही है? सर अभी ऑप्शंस में ऐसा दिया है कि ए और सी दोनों में 99 और 37 तो हम कैसे पर क्या केल्विन में है और डिग्री सेल्सियस में दोनों वही है? दोनों डिग्री सेल्सियस में ही है तो हम जस्टिफाई कैसे करें कि ये ऑप्शन होगा या सी. अरे पर सोर्स एंड सिंक ही तो है. सोर्स हायर टेम्परेचर पे है, सिंक लोअर टेम्परेचर पे है. हमेशा याद रखना सोर्स हायर पे होगा ना. सोर्स हायर पे है. तुझे क्या पूछा है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक. तो पहले जो आएगा वो सोर्स है, तो पहला तेरा 99 आएगा ऑप्शन में, और उसके बाद सिंक आएगा 37. सो सोर्स इज 99, सिंक इज 37, नॉट द अदर वे राउंड. ओके, मैं करने जा रहा हूं राउंड 2 का 21. राउंड 2 का 21. स्टे विथ मी. राउंड 2 का 21. What does it say? It says 200 cal of heat is given to a heat engine. So Q1 is 200 cal of heat is given to a heat engine so that it rejects 150 cal. So Q2 is 150 cal in the sink. If the source temperature T1 is 400 Kelvin, then the sink temperature is, oh, they got me here. ये इतना इजी वाला मैंने क्यों चूज किया पता नहीं. We know Q1 by Q2 is T1 by T2. T1 by T2. Q1 200, Q2 150. 150. 400. Now 200 by 150 is 4 by 3. Is 400 by T2. 4 कट गया. T2 is 300. 300. Kelvin, Yes. Kelvin ना डिग्री सेल्सियस में. So this was quite easy. And finally मैं एग्जाम्पल 9 करना चाह रहा था लास्ट टाइम भी, जो मैं इस बार करूंगा. एग्जाम्पल 9. I hope you can have a look at it. एग्जाम्पल 9 मस्त सम है ये. एडियाबैटिक प्रोसेस के कैलकुलेशन वाला सम है.
Example 9. Okay. It says, find the work required to compress adiabatically 1 gram of air initially at NTP. NTP मतलब कितना प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस 0 degree Celsius plus 273 टू हाफ इट्स वॉल्यूम. तो V2 और इसका वॉल्यूम लेटर से V1 है, तो V2 इज V1 बाय 2. डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है रो कितना 1.29 इंटू 10⁻³ है ना, 1.29 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर 10⁻³ सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड गामा इज 1.4. ये गामा वाट लगा देगा. ओके सबसे पहले भाई वर्क के लिए क्या क्या इक्वेशंस है तुम्हारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में. यू रिमेंबर वर्क डन P1 V1 minus P2 V2 over gamma minus 1 gamma minus 1. ओके तो हमको P1 दिया हुआ है, V1 नहीं है, V2 भी नहीं है, P2 भी नहीं है. तो हमको ये तीनों चीजें फाइंड करनी है तभी जाके कुछ बात बनेगी. तो सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड करते हैं. ओरिजिनल वॉल्यूम. डू यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी. तो मास कितना है 1 ग्राम ओवर 1.29 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ चढ़ जावन 1000 बाय 1.3 भाई 1000 बाय 1.3 करीबन 100 बाय 1.3 दैट्स 1000 बाय 13 7 91 कितना बचा 9. तो 13 7 लगभग 77. कहीं कुछ गलती तो नहीं. 10⁻³ है ना ऊपर. शिट मैंने सिर्फ 2 जीरो लिया. 10,000 हो जाएगा जी. तो 770 सेंटीमीटर क्यूब करीबन. आप चाहो तो एक और कैलकुलेशन मार सकते हो पर मेरे लिए 770 वर्क्स आउट. ओके तो करीबन 770 V1 आ गया. तो V2 भी मिल जाएगा 770 by 2 नो प्रॉब्लम. अच्छा अब मुझे P2 फाइंड करना है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. यस सर P1 into V1 raised to gamma is P2 into V2 raised to gamma. तो P2 मुझे P2 चाहिए P1 into V1 by V2. ओके P1 कितना 1 एटमॉस्फेयर. करेंगे बेटा कुछ ना कुछ तो करेंगे ना. तो V1 by V2 isn't it 2. तो 2 raised to 1.4. now this can prove a bit crucial कि 2 raised to 1/4 कितना. तो मैं एक नोट में 2 raised to 1/4 फाइंड करने की कोशिश करता हूं. विल बी एंटी लॉग ऑफ ये 1.4 जंप कर गया आगे 1.4 log 2 log to log to the base the base 2 नहीं log to the base 10 पर log of 2 and log 2 everybody knows 0.3010 बराबर. and 1.4 into 0.3 14 3 सा 42 ना 0.42 का एंटी लॉग. अच्छा जहां तक मुझे याद है एंटी लॉग ऑफ 4 is 0.2512 and एंटी लॉग ऑफ 5 is 0.31 बराबर. I think these are the options. एंटी लॉग ऑफ 4 is 0.2512 and एंटी लॉग ऑफ 5 is 0.3162. अच्छा 42 कहीं बीच में होगा. एक काम करो तो 0.31 में से 0.25 को माइनस करो कितना होता है 31 और 25 0.06. ओके इसका मतलब है 4 से लेकर 5 तक हर एक डिवीजन का वैल्यू है 0.06. मुझे कितना चाहिए 42. तो 2 डिवीजन तो 0.06 आर 0.12. तो 0.25 प्लस 0.12 that's 0.262. Yeah 2.62 rather 2.62 into 10⁻�0. तो 2 raised to 1.4 का आंसर आता है करीबन 2.62.
सही है, बरोबर है। सर ये ऐसा हमने बोर्ड में किया था ना, उसका भी बिल्कुल। सेम किया था, 2:40 तो मुझे यहाँ से P2 2.64 आंसर आ रहा था। 2.64, यस यस। सो P2 इस करीबन 2.64 जैसा रखो या 2.62 जैसा रखो, तुमको जो रखना है रखो, एटमॉस्फेयर। हाँ तुमको जो रखना है। तो P2 मिल चुका है, V1 मिल चुका है, P1 है, V2 इज V1/2 तो है ही है। Shall we do P1 V1 minus P2 V2 over gamma minus 1? Can I take all this off? Yes sir. Can I? 770 याद रखना और सेंटीमीटर क्यूब है वो याद रखना। सो वर्क डन। आपको लॉग एंटी लॉग याद करने पड़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ सर। P1 कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, मतलब मैं 10⁵ लगा रहा हूँ। V1 कितना था? 770 170 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। 10⁻6 जी जी जी। P2 2.62 into 10⁵ एंड V2 770 का आधा कितना? 335 335 ओवर 1.4 माइनस 1। जगह की तंगी तो हर जगह महसूस होती है। 5 - 6 -1 तो ये 0 उड़ जाएगा, -1 तो आई एम टेकिंग दिस ऑफ। लेट्स सी कितने आंसर के कितने नजदीक पहुंच सकते हैं। तो 77 माइनस 2.62 इंटू 33.5 डिवाइड बाय 0.4, तो 33.5 इंटू 2.6, 6 5 are 30, 6 3 18 19 20 21, 6 3 18 19 20, 5 2 are 10, 3 2 are 6 and 1 7, 3 2 are 6, 87.1। ये आंसर माइनस में है क्या? नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर। अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही है -25 नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गामा -1, P1 V1, P1 1 एटमॉस्फेयर, P2 2.62 इंटू 33.5 इंटू 2.6 कर दिया, ये 77। मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है? सर 77 का आधा 385 नहीं होगा? वही मैं सोच रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ। 335 तो कैसे हुआ? 335 का डबल तो 670 होता है, 770 थोड़ी होता है। क्या ये अच्छा किया क्लिक हो गया, नहीं तो हम फाइनली फाइंड आउट तो कर ही लेते कि कहीं ना कहीं जोड़। ओके, लेट्स गो इट अगेन। 5 6 are 30, 6 8 are 48, 48 and 3 51, 6 3 are 18, 18 and 5 is 23, 5 2 are 10, 8 2 are 16, 1 17, 3 2 are 6 and 1 7, so 7 and 3 10, 7 8 9 10, oh 100, क्या बात है। And 77 minus 100 is how much? -23, -23 and 23 into 2.5, क्योंकि नीचे 0.4 into 2.5 तो 1 हो जाता है। So 23 2s are is 46, कर ही लेते ना। 23 into 2.5, 3 5 are 15, 5 2s are 10, 1 11, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 5 हो गया ये, 6 and 1 7, 57 के आसपास देखो तो आंसर, पर हमने थोड़ा सा ये किया है तो 60 के आसपास होना चाहिए। देखो तो करीबन 60 62 ऐसा कुछ, 61 62 62.7 ये है ना, 62.7 नेगेटिव में। हाँ सर। नेगेटिव में आंसर चेक कीजिए, सही है। क्योंकि हमने एक्चुअली 770 भी एग्जैक्ट नहीं था, 770 से भी कुछ और था, बट देयर आर सो मेनी कैलकुलेशंस हियर कि अगर तुम लेने जाओगे एक एक डेसिमल भी तो काफी टाइम लगेगा और काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमने लीस्ट कैलकुलेटिव करके भी इतना सारा कैलकुलेशन हुआ, तो जरा सा आंसर में थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है। सो प्लीज चेक इट आउट, सही है ये।
है ना? ओके, मैं आई थिंक एक और करने की कोशिश में हूँ, बट आई थिंक जितने भी पॉसिबल थे वो सारे कर दिए हैं अपन ने, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। ये कौन सा है, कोई रह गया है क्या? नहीं, आई थिंक हमने सारे किए। या वी हैव वर्क, आई थिंक वी आर डन। तो जितने कराने थे वो सारे करा दिए। थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम ऑसिलेशन शुरू करेंगे, सो आई गेस you need to be there. All right, you all take care and have a lovely evening. Bye bye.